Hello everyone, here Ritika with Understanding Quadrilateral Class 8 Chapter 3, and this is fourth part of this chapter. Today I am going to solve second question, third part. Here diagram is given as this is a parallelogram. It is given that this is a parallelogram. Now parallelogram means opposite sides are equal and parallel. So here this is x and here this is 90 degree. So x is also 90 because vertically opposite angles. Two lines when crossed with each other, angles formed are called vertically opposite angles, and these vertically opposite angles are equal. It means x is 90 degree. Now in this triangle, in this smaller triangle, one angle is 90 degree, second is given as 30 degree. That means angle y is 60 degree because angle sum property of triangle. Sum of these three angle is 180 degree. First is 90, second is 30. That means third angle is 60 degree. Now here 60, that means z is also 60 degree because y and z are alternate interior angles. Two parallel lines. This is transversal line, and in class 7 we studied about the properties. These properties that these type of angles are called alternate interior angles, and these are equals to each other. I am going to solve on notebook. First of all, a quadrilateral is given, and it is also given that this is a parallelogram. Now this is a parallelogram means opposite sides are equal and parallel. This angle is given as 90 degree. It means this angle is also 90 degree and it is named as x. This is 90. It is given as 30 degree. In this smaller triangle, sum of three angle is 180 degree. It means angle y is 120 degree. Angle x is 90 degree. Okay, vertically opposite angle. Angle y is equals to 60 degree. 60 degree because angle sum property of triangle. 90 plus 30 plus y, तीनों का sum 180. That means y is 60 degree. Clear? Now angle z, this is angle z. This is also equal to angle y, and that is 60 degree. Why angle y? Because alternate इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ बनते हैं? जहाँ हमारी पैरेलल लाइंस हो और कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन हो. ओके, नाउ next part is this diagram. This is a parallelogram, is opposite sides are equal and parallel, and we know that in a parallelogram sum of adjacent angle is 180 degree. Adjacent angles, that means if this is 80 then this is 100 because sum of these is 180. ये 100 हो गया. अब ये दोनों लाइंस भी तो आपस में पैरेलल है. अगर ये एंगल हमारे पास 100 है, इट मीन्स ये 80 हो गया. और वैसे भी अपोजिट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अगर ये 80 है तो ये भी 80 हो गया. अब z की वैल्यू रह गई. z इज ऑल्सो 80 बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. ये सेम साइड है, अबव है, ये इस लाइन के अबव है. पैरेलल लाइंस के दोनों ऊपर की तरफ बन रहे हैं ऑन द सेम साइड, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए. ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे इसको? x इज 100 डिग्री बिकॉज x एंगल x एंड 80 डिग्री, सॉरी एंगल x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन क्या आएगा? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए एंगल x आ गया हमारे पास 100 डिग्री. नाउ एंगल y इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. क्या रीजन आएगा? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, एंड z इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. क्या रीजन आएगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. ओके, अब इसका जो नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है वो आपको होमवर्क है जो बहुत इजी है. देखो y है ये और ये 112 है. पैरेललोग्राम है ये, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल, दैट मीन्स y भी आपका 112 हो जाएगा.
ठीक है। अब इस छोटी वाली ट्राइंगल में एक एंगल 112 है, एक 40 डिग्री है, तो आप x कैलकुलेट कर लोगे। जब x आपका सॉल्व हो जाएगा तो वही z की वैल्यू होगी, क्योंकि z और x आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है ABCD, फिर उसके अकॉर्डिंग सेम नेमिंग भी ऐसे ही करनी है आपने, ABCD। फिर आपने देखना है कि D और B क्या दोनों का सम 180 हो सकता है या नहीं हो सकता, वो बताना है। और फिर इस तरह का एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है जिसमें ये लाइन सेगमेंट्स गिवन है। अब ये तो दिख रहा है वैसे ही कि ये नहीं होगा पैरेललोग्राम, क्योंकि इसमें देखो साइड्स की मेजरमेंट में वेरिएशन है, यहाँ 4 सेंटीमीटर है, यहाँ 4.4 है, तो ये अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल तो हो ही नहीं पाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी आप ड्रॉ करके चेक करोगे। फिर थर्ड वाला भी आप एक पैरेललोग्राम बनाओगे, उसमें 70 डिग्री है A पे और 65 डिग्री है C पे। तो क्या ऐसा हो सकता है, जबकि हमें पता है कि ABCD में A के अपोजिट C आता है, A के अपोजिट में C दिखेगा, तो A और C तो इक्वल होने चाहिए, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, इसको भी आप बनाओगे। नेक्स्ट फोर्थ है, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल मेजर। आपने एक ऐसी डायग्राम बनानी है जो पैरेललोग्राम नहीं हो, लेकिन इसकी 2 अपोजिट साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल मेजर की हों, ऐसी बनानी है आपने। 2 अपोजिट साइड्स इक्वल मेजर की हों, लेकिन वो पैरेललोग्राम ना हो। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, एक इस तरह की डायग्राम भी बना सकते हो। ये बनाया, ट्रेपीजियम जैसा बना दिया। अब अपोजिट्स, ये पैरेललोग्राम भी नहीं है, अपोजिट साइड आप इसको भी 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेना, इसको भी 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेना, फिर उनको ज्वाइन कर देना इस तरह से। ठीक है, तो ये आपस में इक्वल भी हो जाएंगे और ये पैरेललोग्राम भी नहीं होगा। तो ये आपकी डायग्राम आ जाएगी 4th क्वेश्चन के लिए। ओके, नाउ 5th क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3:2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, एक है, इसकी रेशियो गिवन है 3:2, मीन्स एक 3x एक 2x, ये हो गया। जो रेशियो गिवन है हमने उनके साथ x लगाया, बस कुछ नहीं किया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है और एंगल्स भी बताने कितने कितने के हैं। ठीक है, अब हमें ये पता है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, कितना सम होता है एडजेसेंट का, अभी हमने पढ़ा था 180 डिग्री। इसका मीनिंग है 2x + 3x दोनों का सम 180 डिग्री हुआ। ये 5x हो गए, ये 180 हो गया। x = 180/5 हो गया। 5 1 = 5, 5 3 = 15, 5 और ये आ गया x की वैल्यू 36 आ गई। अब ये तो आई x की वैल्यू, ये एंगल थोड़ी है, तो एंगल क्या आएगा, इसको नाम दे दो ABCD। तो एंगल A है हमारे पास 2x, मीन्स 2 × 36 72 डिग्री, ये आ गया। और एंगल B है हमारे पास 3x, मीन्स 3 × 36 दैट इज 108 डिग्री, हो गया सॉल्व। और एंगल C भी 72 होगा क्योंकि A के अपोजिट है, और एंगल D वो भी कितना होगा 108 डिग्री, क्योंकि वो B के अपोजिट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब ये है भी पैरेललोग्राम, ठीक है, और एंगल्स भी इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल, तो वो 90 के ही बनेंगे। अगर एक x है ये भी x है, मीन्स इक्वल मेजर है। दोनों का सम 180, क्यों, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैविंग सम 180 डिग्री। अगर ये x है तो ये भी x है, क्योंकि दिया है ना कि इक्वल मेजर के हैं, और दोनों का सम 180, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की कि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये 2x = 180, x = 90। तो एक एंगल 90 का, दूसरा भी 90 का, फिर इनके अपोजिट वाले वो भी 90 के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन। अब है 7th क्वेश्चन, द एडजेसेंट फिगर HOPE HOPE is a parallelogram, find the angle, measure x y z, state the property you use to find them। अच्छा, इसमें बताना है आपको कि कौन कितने का डिग्री का है। भाई ये पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम है ना ये, तो ये 40 है, तो y की वैल्यू अपने आप 40 आ जाएगी। क्यों आएगी 40, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ 40 आ गया।
ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये 70 है तो ये वाला कितना होगा, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है ना, ये लीनियर पेयर है, ये 70 है तो ये 110 बनेगा। अब ये 110 बना तो इसके अपोजिट में x है, x भी कितना हुआ 110 हो गया। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब आपको रह गया z कैलकुलेट करने। z तो बहुत इजी है, देखो यहाँ इस छोटी वाली ट्राइंगल पे ना आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगा दो, जिसमें एक एंगल 40 डिग्री है, एक 110 है, इन दोनों का सम हो गया 150 डिग्री। दैट मीन्स z आपका रह गया ओनली 30 डिग्री। ये आ गई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, z की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। हो गया सॉल्व। ठीक है, तो इसके अलावा आपको होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 8। अगर प्रॉब्लम आएगी तो आपने मुझसे पूछना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको होमवर्क है। ओके, थैंक यू।